Today we are going to talk about situationships. Just don't become someone's shadow. I know we live in a twisted world. When you're not looking for love, love finds you. Signs that you're in a situationship. Why do people fall out of love? What's up, sister? So hello, hi, hope you reach home safely, or if you're watching this before sleeping, I hope you have a good sleep and I hope you had a good day. Yes, I hope you had a good day. Yes. Better day tomorrow. Yes, happy Monday everyone. Happy Monday. Sissy, I would like to start the podcast. मैंने Kardashians में देखा था Pit and Fall. Try करेंगे every week करने का. What was your pit and what was your fall? No, what was your peak? Sorry. Peak and pit. Oh. Peak and pit of your week. बताओ. Okay. Oh, अच्छा ठीक है अब मेरे को समझ आया question. Peak is okay. Peak is when I got to know that I am an adult right now and I can handle my own finances and I have a capability to invest in bigger things. That's nice. That's the peak. And pit was, there was this instance which happened and I felt really sad in that moment. Like I literally cried in front of Ritika. Like I don't know how to manage those emotions. I can't share it on podcast right now, but those emotions were something different. मतलब ऐसे कभी मैंने feel नहीं करा ऐसा emotion इतना helpless और इतना ऐसा सा कि I need to sort my things out. I need to be in charge of my own life and ऐसा कर कर. Yeah. What was your peak and pit? अच्छी चीज से start करते हैं. So peak, I think definitely looking forward to a brighter future because we are looking at different things right now and I'm really excited because that's going to be a big change, big step in adulting. I think something that 31 की हो गई है sister अभी तक adult नहीं बन पाई हैं आगे. So I think that because I've been waiting for that for a really long time and I'm scared to take that step. Like we're so used to and comfortable in this environment, but I know it'll be better for our future. Yeah. So peak वो है. In short, अभी explain नहीं कर सकती मैं properly, but मेरी life में, दीक्षा की life में 1 महीने 2 महीने में वो change आने वाला है जो हमने we've never experienced. Or also. Yeah. We did imagine, but we thought, oh, it's not practical enough. Yeah. But now circumstances are like that कि there's no other option and we'll have to do that. So yeah, I'm excited for that. I'm excited for a new chapter. Like it's gonna be amazing. And it starts with us. And oh yeah, even the movie, watching that movie with you was my peak. But क्या होगा? Just feeling helpless because the case that happened, the Kolkata case, which we all know about. Yes, that was really sad. And talking to my friends about it and maybe like my girlfriends and them feeling the same and helpless and just helplessness. Yeah. That. It starts with us से मुझे याद आया that Kritika and I went to watch It Ends With Us. So personally, there are two different opinions of... Oh yeah, we said that we'll be sharing our reviews. Exactly. So दो different opinions हैं audience के. The audience is divided in two parts. One who read the book, one who watched the movie first. It Ends With Us was the first fictional book which I loved. I had chills also after reading that book and I don't know, जैसे मैंने पहले भी share करा था, I had nightmares after reading the book and it affected me in a way because I don't want to say anything or that, but I could relate to what the girl was going through and everything. So in a way, so I really felt that book in a different way and I was looking forward to It Ends With Us. But I personally felt that movie was to end it in like 2 hours. The movie was like shot very quickly and बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा था. वो movements जो book में जो define कर रहे थे ना कि emotion को वो cut कर दिए गए थे. Like after breaking up with Ryle, how they come back together, those short meetings, वो सब कुछ cut कर दिया गया था. Cut to she's pregnant, cut to she's divorced now. So बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा था. I felt, but movie is cute obviously. I love Blake Lively. जितना वो try कर सकते थे उन्होंने करा, but I personally felt ठीक है अगर time duration अगर ज़्यादा हो जाती तो रख देते, but वो parts नहीं cut करने चाहिए थे इतने जो ऐसे feel कर जो build कर रहे हैं, जो build कर रहा था movie. Because obviously I think हमने Snapchat दीक्षा मैंने share करा था अपना reviews. Book इतनी बड़ी होती है, you have a lot more time to build a scene and visualize. मुझे इसमें I felt exactly the same. इतने मोमेंट्स ऐसे हो रहे थे मैं कैच अप कर रही थी और वो दूसरी चीज स्टार्ट हो जाती थी तो मुझे लगता है आई डिडंट इवन फील दैट इमोशन और दूसरा आ गया और ये हो रहा है. पर्सनली आई फील मोर अटैच्ड टू द स्टोरी व्हेन देयर इज अ बिल्ड अप बिहाइंड द स्टोरी. पता लगता है कि ऐसे इसके माइंड में ये थॉट चल रहा है, ये करेगा ये करेगी एंड फिर वो एक्शन होता है. ऐसे हो रहा था वो ये करेगा ये करेगी हो नहीं रहा था, सीधा स्टेप हो रहा था एंड दैट वाज टू क्विक. बट ऑब्वियसली आई लव ब्लेक लाइवली. एक्टिंग
wise, I loved the performances. Yeah. Blake Lively को बहुत फ्लेक मिला था कि ओ लिली का कैरेक्टर Blake Lively को प्ले नहीं करना चाहिए, she is older and this and that. मैंने ऐसे इमेजिन नहीं करा था, but she fits into the character perfectly. Perfect. And I think the camera loves her. Her presence on camera is so, what's the word for that? कैसे समझाऊं मैं? हाँ, X factor. The X factor is there, which I see in Katrina Kaif also. Like whenever she walks the ramp or she's in a song or a movie, she demands your attention somehow. Like you would want to watch her. ऐसी Blake Lively को I want to watch her and her actions, her reactions और जो facial जो उसके expressions होते हैं वो I personally love her and I loved her in Gossip Girl also. But yeah, एक तो quickly end हो गया और Serena van der Woodsen. Yeah, first of all उसमें बहुत triggers हैं. Trigger warning if you feel triggered, domestic violence or abuse और बहुत सारी चीज़ें हैं. So don't go watch that movie. Otherwise, if you're okay with it, then you should definitely at least watch it once because it's a different experience. Yeah. So I saw Ashi's story on Snapchat and उससे किसी ने पूछा था you like the book more or movie? So she was like मैंने book पढ़ी ही नहीं है and I personally loved the movie. It was so cute and मैं समझ पा रही थी उसका क्योंकि उसने book नहीं पढ़ी ना. That's why उसको movie इतनी cute लगी and we were talking to a friend last night also and she was like I want to watch the movie. I was like आपने book पढ़ी चाहिए? No. मैंने कहा आपको बहुत अच्छी लगेगी movie and हाँ ठीक है movie बहुत cute थी but after reading the book I had lots of expectations with the movie and plus Blake Lively थी involved and सब कुछ था so मेरे को थोड़ा सा disappointing लगी movie. But still, अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है, you should go watch the movie. I'm really excited to get into more fiction. मेरा अभी वो फेस चल रहा है. So suggest me some books if you have something in mind. मेरे को Starts With Us पढ़नी है. तूने पढ़ी हुई है? मैंने start करी थी और फिर मैंने पूरी नहीं आप पढ़ी. It Starts With Us को start करके आपने छोड़ दी. I'm into Korean dramas these days, guys. Oh, so cute. तो लग रहा है मेरे फेस पे अभी है जो मैं थोड़े टाइम पहले थी. Actually, King the Land देख रही हूँ मैं आजकल. In real life, are they in a relationship? I think so. King the Land वाला नहीं King the Land मैं बहुत खुश होंगी. मैं श्योर नहीं हूँ वो नहीं है क्रैश लैंडिंग ऑन यू जो है उसमें वो कपल की शादी हो रखी है बट किंग द लैंड का आई एम नॉट श्योर. अगर वो होंगे रिलेशनशिप में मैं बहुत बहुत खुश होने वाली हूँ. दे लुक सो क्यूट टुगेदर. मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आई थिंक बात करी थी. इट गिव्स यू होप. It's such a nice feeling and I love मुझे इतने मजे आते हैं वो देख के और वो इतना क्यूट प्योर से होते हैं. मतलब ऐसे टच कर किसी गाना बज रहा है वो बिल्डअप हो रहा है आई कॉन्टैक्ट हुआ तो उसमें इतना हो रहा है. सो अभी मैं उस एपिसोड में जहाँ पे वो ट्रिप पे जाते हैं सारे. ओह अच्छा. या एंड वो जैसे छोटी छोटी चीजें उसके लिए करता है ना जैसे लाइक बीइंग अ पर्सन ही इज चेंजिंग फॉर द बेटर. उसके लिए जैसे चेंज हो रहा है वो एंड वो भी कैसे धीरे धीरे पहले उसके बारे में सोचती थी कि ही इज अ खड़ूस एंड स्टबर्न है ये है वो उसका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो रहा है और वो कैसे उसके लिए चेंज हो रहा है. सो इट्स क्यूट. It's very cute. K-drama is cute. It's one thing that I look forward to. ऐसे पूरे डे के बाद मेरे पास चाहे लिटरली 10 मिनट बचते हैं अगर सोने से पहले बिकॉज आजकल हमारे डेज बहुत पैक्ड हैं. टचवुड. एंड आई मिस्ड दैट फीलिंग. पता है लाइक मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था देयर वाज अ टाइम जब आप वैसे इतने सराउंडेड होते हो नेगेटिविटी से एंड यू आर स्ट्रगलिंग सर्वाइविंग इन लाइफ तो आप इन सब चीजों को भूल जाते हो. लाइक व्हाट यू एंजॉयड. आपको क्या मजा आता था करने में. नाउ आई एम इन दैट फेज वेयर आई एम स्लोली बिल्डिंग माय सेल्फ एंड आई एम इन अ बेटर हेड स्पेस आल्सो. तो मुझे ऐसे मजा आता है ओह मैं रात को ही देखूं. ऐसे उस 5 घंटे में ऐसी खुशी में निकाल लेती हूँ कि ओह मैं रात को ही देखने वाली हूँ. और जब खत्म हो जाएगा ना तो इतनी सैड ऐसे मत बोल. मैं जानबूझ के धीरे देख रही हूँ कि जल्दी खत्म ना हो जाए. तो धीरे नहीं देख सकती के ड्रामा को. मैं बिंज वॉच करती हूँ लिटरली 7 in the morning तक मैं के ड्रामा देख रही होती हूँ. आई रिमेम्बर गाइस बट प्लीज वो खत्म होने से पहले कमेंट डाउन बिलो मैं और क्या देख सकते हो सो दैट आई एम प्रिपेयर्ड. तो ट्रू ब्यूटी देख सकती है. इट्स वेरी नाइस. ट्रू ब्यूटी इज आल्सो वेरी नाइस एंड देयर इज वन मोर. मैं चाचा भी किसी ने मुझे सजेस्ट किया. चाचा मैंने देखा नहीं बट ट्रू ब्यूटी बहुत अच्छा. देखो क्यूट लगेगा वो भी बहुत प्यारा है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट लव एंड उसी टॉपिक पे मैं आगे बात करना चाहती हूँ. लव की रिलेशनशिप्स लव से रिलेटेड बहुत डिफरेंट होती है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिचुएशनशिप्स. यस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्क्राइब करते हैं सिचुएशनशिप की डेफिनेशन. ठीक है गाइस गूगल पे से सर्च करेंगे. और रोमांटिक और इंटीमेट रिलेशनशिप दैट लैक्स क्लियर डेफिनेशंस और कमिटमेंट टिपिकली एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल रोमांटिक रिलेशनशिप्स. बेसिकली you are talking to someone and you both are not committing to a bond or exclusivity and you are just doing everything जो एक couple relationship में करता है. मतलब I personally never knew कि ये word भी है ये चीज़ भी है. लास्ट 3-4 years में मुझे ऐसे लग रहा है इतना आई थिंक लास्ट 5 years में मुझे इतने न्यू वर्ड्स पता लगे डेटिंग के भी. शेल्फिंग इज अ वर्ड. शेल्फिंग पता देखो क्या होता है. शेल्फिंग तूने मुझे बताया था मैं भूल गई. हाँ शेल्फिंग इज अ वर्ड कि जैसे आप मे बी हिंज बम्बल पे लाइक ऑन डेटिंग एप्स यू आर टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल तो आपने लाइन में 3-4 आई थिंक आई एम राइट यही होता है शायद मेरी फ्रेंड ने ही बताया था मुझे. 3-4 लोगों को रखा हुआ है. जैसे फर्स्ट से बात करी फिर उसको रखा हुआ है फिर दूसरे से बात करी तीसरे फिर फोर्थ फिर फर्स्ट. तो शेल्फिंग लाइक
You have different people और आपने सबको एक वो दे रखी है, वो सर्कल की तरह चले जा रहा है. That's shelving. I hope I'm right. Oh God. Love bombing. It's a Ghosting it's a तो word. सबको पता है यार. Ghosting तो सबको पता. Love bombing is a word. There's one more जो तूने मुझे बताया था. क्या? मैं भूल गई. Shelving, love bombing, ghosting, friends with benefits तो पता है, सबको पता है. अगर किसी ने पॉडकास्ट सुना है FWB वाला. In this episode, we're going to talk about situationships. Tell me your experience, like situationships. with situationships. ओके सो मैं बैक ट्रैक करके पहले बताना चाहूंगी कि माई आइडियोलॉजी ऑफ लव और मैं कैसी हूँ. मैं कल परसों अभी किसी से बात करी थी, वो दीक्षा का ही फ्रेंड है, तो वो दीक्षा को बोलता है कि यार मैं ना इतना ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे मैंने कहा तू भी ओल्ड स्कूल, मैं भी ओल्ड स्कूल, दीक्षा भी ओल्ड स्कूल, सब ओल्ड स्कूल. फिर लोग जो एक दूसरे को ये सब हो रहा है, जो गलत कर रहे हैं, गलत कर कौन रहा है? मतलब सब बोलते हैं कि आई एम ओल्ड स्कूल एंड मुझे ये सब चीजें पसंद है. एंड ऑब्वियसली वी आर मेकिंग द जनरेशन राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव, आई एम अ होपलेस डाई हार्ड रोमांटिक एंड आई एम एक्चुअली stupid in love also. I feel Stupid in Love movie है ना? Stupid in Love. हाँ, I think so. Stupid, chal, it's a very strong word. I will say that I think it depends on luck also. Maybe that's also. I've seen people get together and stay together. एक meeting के बाद they got to know that oh you're my person. And बहुत सारे लोग they've been friends. For example, you guys they've been friends for a really long time and they connect later on in life and they stay together. But coming back to situationships, I personally feel उससे पता लगता है आपको आप एक situationship में हो. एक तो first of all share things with your friends because a lot of times most of the girls will relate. We love and we believe जो the other person is saying वो friend के bracket में डाल के doing everything that you would do in a relationship, constantly staying in touch. And I'm not just talking about the physical things but like just सिर्फ girlfriend boyfriend ना बोलना एक दूसरे को and doing everything that a girlfriend boyfriend does, not being there for you when you actually need someone, emotional support. जब भी थोड़ा सा गलत हुआ भाग लेना या चीज करना या फिर और चीजों को प्रायोरिटी रखना, उस रिलेशनशिप में ग्रोथ ना होना, बिल्ड ना होना, and you constantly feeling abandoned and alone or constantly doubting yourself. Am I wrong? Am I doing too much? I think day before yesterday I was talking to my friend also about this. She's in a relationship, long term relationship, and वो अपने पुराने experiences बता रही थी. She was telling me that मैं हमेशा सोचती थी कि यार जल्दी मैसेज नहीं करूंगी, जल्दी रिप्लाई नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी. कहती why do I even need to change myself as a person just to play this game of relationships? कहती वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरे लिए होता है कि मुझे अपना मैसेज का टाइम देखना है, उसको ज्यादा नहीं दिखाना मैं कैसी हूँ, मैं कितना प्यार कर सकती हूँ, ये वो. एंड वो कट्टू बता रही थी कि नाउ दैट आई एम इन अ रिलेशनशिप आई सी दैट डिफरेंस कि मुझे उसके सामने कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई गेम प्ले करने की जरूरत नहीं है. आई एम हु आई एम. आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन बिग ग्रीन फ्लैग कि जब आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में होते हो. एंड वन रेड फ्लैग आई पर्सनली फील व्हेन यू आर स्कैर्ड टू शेयर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स कि ये मैं अपने फ्रेंड को इसके बारे में बताऊंगी ना तो इसकी इमेज गंदी हो जाएगी. हाँ, तो दैट मीन्स यू आर सफरिंग अलोन. आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है उस सिचुएशन में मे बी. सो या एंड सिचुएशनशिप्स में इट्स इवन वर्स जब आप सिचुएशनशिप्स में होते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं होता बुरा किस लिए फील करो. यू आर नॉट इवन इन अ रिलेशनशिप और आप किसी पे बोल नहीं सकते कि यार व्हाई आरंट यू गिविंग मी योर टाइम, व्हाई आरंट यू बिहेविंग अ सर्टेन वे जैसे लोग रिलेशनशिप्स में करते हैं बिकॉज यू कांट आस्क फॉर दैट एंड यू आर स्टूपिड इफ यू आस्क फॉर दैट बट द अदर पर्सन कैन आस्क फॉर एवरीथिंग एल्स. इट्स सो सैड एंड आई हैव सीन पीपल बी इन सिचुएशनशिप्स फॉर 3 years 4 years एंड उसके बाद जाके they realize भाई not gonna work because वो एक होप रहती है मन में that this person might change, I will change this person. and आपकी ईगो बोल रही होती है अंदर से वो that मैं वो ड्रीम गर्ल या ड्रीम गाय बनूंगा जो इसको चेंज कर देगा. हाँ, जिसको चेंज होना होता है वो हो जाता है, आपके एफर्ट्स से नहीं चेंज होगा. एक बड़ी सैड लाइन है बट मेरी फ्रेंड ने मुझे बोली थी एक बार, कोई इतनी पुरानी बात है बट अभी तक मेरे दिमाग में है. इफ अब सिचुएशनशिप में और अगर वो बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा या बी इट अ गर्ल और अ गाय जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, यू आर नॉट हिज और हर ड्रीम पर्सन. एज सिंपल एज दैट. बहुत बुरा लगता है सुनने में कि यार मेरे में क्या कमी है, मेरे में. इट्स नॉट अबाउट यू, यू आर जस्ट नॉट द पर्सन दे वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ विद. एंड उसको जस्टिफाई करना कि यार ये हुआ था इसलिए वो ऐसा हो गया या ऐसी हो गई, हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं बट लाइक इट्स वेरी वेरी सैड. एंड मुझे वो बुरा लगता है कि यार इन द एंड कितने सारे लोग अपना कितना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने इमोशंस अपनी लाइफ उस चीज के आगे बिल्ड कर लेते हैं. या तू बता about situationships. बोलते हैं ना situationship breakup is worse than a real breakup. Actual में वो होता है if you're in a situationship and even though you're in a 1 month situationship, but जब वो खत्म होती है ना चीज तो आपको इतना टाइम लगता है to move on from that thing because I feel relationship में you have this security, you and the other person are together, you are a couple and you are in a relationship and you're doing things together and जो भी कुछ हुआ ठीक है, तुम दोनों की relationship में problem थी ये हुआ. But in situationship breakup आप constantly उस fear में रहते हो what am I to that person.
पर्सन, अच्छा हमारा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये आगे क्या होगा, मैं इसको ये चीज बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती, तो आप कॉन्स्टेंट फियर में रहते हो अपने इमोशंस को लेकर. एंड वंस यू एंड दैट सिचुएशनशिप यू फील सो अलोन एंड लोनली एंड देयर इज दिस वॉइड, जो आपके इतने सारे क्वेश्चन मार्क होता है, एक वॉइड में पूरे क्वेश्चन मार्क होता है जिसके आंसर्स आपके पास है ही नहीं. मेन आंसर तो वही होता है ना, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो आंसर यही होता है आर वी एक्सक्लूसिव. तो वो एक्सक्लूसिविटी नहीं है, तो आप पूरा टाइम क्वेश्चन मार्क में रहते हो. इवन दो इफ यू आर इन अ सिचुएशनशिप, आपके अंदर वो क्वेश्चन मार्क रहता है, अच्छा हु इज ही टॉकिंग टू, इज शी टॉकिंग टू, वो और किसी से बात कर रहा है नहीं कर रहा, अच्छा ही इज गोइंग आउट विद हिज फ्रेंड्स, मैं बोल भी नहीं सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती. तो दैट कॉन्स्टेंट क्वेश्चन मार्क इज देयर एंड यू डोंट इवन नो व्हाट्स रॉन्ग इन यू दैट अदर पर्सन इज नॉट टेकिंग अ स्टैंड और गिविंग आवर बॉन्ड एंड एक्सक्लूसिविटी. तो वो कॉन्स्टेंट वो चीज रहती है सिचुएशनशिप में एंड इट्स एक्चुअली वेरी वर्स एंड आप कुछ कर भी नहीं सकते if the other person is talking to someone else also. Yeah. So the situationship is basically definition of just friends. Yeah. Just friends and you're doing everything with that person, you're talking to that person. But is it different from friends with benefits situationships ना? इससे different होता है ना? हाँ, because situationship is that तुम दोनों में से कोई एक जना तो उस front पे आया ना that I want to take this relationship forward, but the other person is disregarding all the decisions. Friends with benefits is that you both are agreeing to that term that okay we'll just do things together but we are friends, we have no exclusivity, no tag, no label, so it's there. वो पहले वो कर दिया जाता है क्लियर कि अच्छा ये है, इट्स जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. बट सिचुएशनशिप में यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन इन अ होप ऑफ अच्छा ठीक है आफ्टर अ मंथ मे बी ही लास्ट मी आउट, मे बी शी लास्ट मी आउट. एंड दैट्स सच अ सैड फीलिंग. एग्जैक्टली सच अ सैड फीलिंग. डीकोडिंग चीज, इसने ये बोला था तो इसका ये मतलब होगा ओ. एंड वो ब्रेड क्रमिंग बोला था मैंने. हाँ. या ब्रेड क्रमिंग इज थोड़ा थोड़ा चारा डालना सो दैट द पर्सन इज स्टिल देयर. थोड़ा थोड़ा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, मैं तुझे 5 days 6 days कॉल नहीं कर रही हूँ एंड व्हेन यू आर अबाउट टू फील कि यार ये क्या हो रहा है, इज दिस समथिंग, मैं आ रही हूँ, मैं कॉल तुझसे फुल नाइट आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम शेयरिंग माई फीलिंग्स एंड आई एम अगेन walking off. We're going on a date and I'm again walking off. थोड़ा सा देना so that the person is still in contact and in touch. And situationships का ये भी चीज होती है, उनकी लाइफ में और बहुत सारे लोग होते हैं and उनको किसी एक को कमिटमेंट नहीं देना होता है and they're still figuring out if I want to spend my life with you. I think आजकल के टाइम पे तो most of the people must have gone through it and बहुत सारे लोग relate भी कर पाएंगे. But the feeling you don't want to be alone, वो alone के बाद ये वाला ऑप्शन अगर आपके पास है, that's so sad. एक स्टोरी थी मैंने कहीं पर पढ़ी थी. एक बंदा होता है, उसका नेबर होता है, उसका नेबर का डॉग हमेशा लाइक ही इज ऑलवेज क्राइंग, हमेशा वो बाक कर रहा होता है, रो रहा होता है एंड वो हमेशा जाते हुए सोचता है कि यार पता नहीं ये क्यों रोता रहता है. वो एक दिन अपने नेबर के पास जाता है और बोलता है कि योर डॉग इज ऑलवेज क्राइंग, व्हाट्स रॉन्ग. तो बोलता है कि उसके ना नेल पैर पे घुस गया था एंड वो जब भी वॉक करता है उसको पेन होता है और मैं जब निकालने जाता हूँ उसको इतना पेन होता है कि वो उस टाइम निकालने नहीं देता, बट वो अंदर ही रहता है. तो वो कांस्टेंट थोड़ा थोड़ा पेन बर्दाश्त करने के लिए रेडी है बट वो नेल नहीं निकालने देता. ऑब्वियसली इट्स अ मेड अप स्टोरी जो भी होगा, बट मेटाफोरिकली या इतना डिफाइन करती है चीज कि वो 2 मिनट का वो रिप द बैंडेड ऑफ करके वो पेन फील करना, बीट फॉर अ मंथ और 2 months और 3 months, हम उसके लिए रेडी नहीं होते. बट हमें लगता है चल तब तक के लिए तो कोई तो है ना, कोई वॉइड फिल करने के लिए तो है ना. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय गर्लफ्रेंड्स एंड इवन गाय फ्रेंड्स ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है हमेशा एक टैग दे दिया जाता है बिकॉज ऑपोजिट जेंडर हमेशा दूसरे को गलत लग रहा होता है. I've seen a lot of guys also go through this selflessly loving the other person but in the end कुछ नहीं होता. वही, बट आई पर्सनली फील लाइक मैं हमेशा कृतिका को भी यही चीज बोलती हूँ एंड जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको ये चीज बोलती हूँ, टेक टाइम टू हील at least after a relationship, a long term relationship or any 1 month relationship, and जितना भी time duration हो relationship का, at least take time to heal. Because when I broke up, मैं हमेशा ना questions जाकर Google पे check करती थी, how long does it take how long does it take to you move on from a relationship and everything. सबने उस पे लिखा हुआ था depends on you, कितना time आप लेते हो. कुछ लोग 1 महीने move on कर जाते हैं, कुछ लोग years लगा देते हैं move on करने में. And मेरे को ना हमेशा ऐसे लगता था oh I moved on this person, oh I started talking to that person again, labeling that oh I'm just friends with him and I moved on from that person, but no I did not. मुझे actual में वो अपना tie break करने की need थी and then I invested that time and energy on myself and मैंने actual में अपने आप को उस phase में love करना सीखा है. like I am enough, जिसको मैं चाहूंगी अपनी लाइफ में वो आएगा, जो मुझे चाहेगा मैं उसकी लाइफ में नहीं जाऊंगी, right? तो मैंने वो 4 years I literally took, I was single for 4 to 5 years. वो 4 years मैंने जो अपने पे time invest करा ना, मैं इतनी खुश होती थी just to dress up and go out with my friends and just enjoy that attention and knowing that I don't need anyone but I know that everyone is watching me. I loved that and actually this phrase is very true. When you're not looking for love, love finds you. And that's the most beautiful part of your life. मेरे को लगता है now that I'm properly healed from my past, now जो insecurities मेरी उस relationship में थी, अगर मैं heal नहीं हुई होती properly तो मेरी वो insecurities इस relationship में भी होती.
नाउ आई डोंट हैव दोज इनसिक्योरिटीज इन दिस रिलेशनशिप. मैं वो चीज फील ही नहीं करती हूँ कि मैं प्रॉपरली हील कर चुकी हूँ उस चीज पे, बिकॉज मैंने अपने लिए टाइम लिया. मैं सिंगल रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमी हूँ, मैंने किसी भी प्रॉपरली रिलेशनशिप्स में जंप नहीं करा टू फिल दैट वॉइड कॉन्स्टेंटली, कि वो कोई प्रेशर नहीं फील करा अपने ऊपर कि आई नीड समवन इन माई लाइफ टू टॉक टू, आई नीड अ पार्टनर इन माई लाइफ. नहीं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी सब रिलेशनशिप में थे, सब कुछ था. माई बेस्ट फ्रेंड वॉज इन रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट मेरे को एक्चुअल में वो एक बार भी फील भी नहीं होता था. पता है फनीएस्ट थिंग इज, मुझे कभी फील ही नहीं होता था कि वो दीज गाइज इन रिलेशनशिप. मैं उनके साथ अगर बाहर जाती थी, आई यूज्ड टू टेक देम एज माई फ्रेंड्स ओनली, नॉट एज अ कपल. ठीक है, मैं हमेशा कृतिका को भी समझा, इवन अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो, ही वॉज शेयरिंग हिज स्टोरी दैट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था एंड दीज गाइज ब्रोक अप. उसके बाद ही मेट अ गर्ल. थोड़े टाइम में ही वाज लाइक आई लव हर एंड आई लाइक नो यू डोंट लव हर, यू आर जस्ट फिलिंग दैट वॉइड व्हिच योर एक्स गर्लफ्रेंड लेफ्ट फॉर यू एंड जस्ट डोंट जंप इनटू अ रिलेशनशिप सो क्विकली. जस्ट टेक योर टाइम. इफ यू रियली लव दिस गर्ल देन टेक इट वेरी स्लोली. धीरे धीरे ना चीज जो ग्रेजुअली ग्रो करती है ना, वो एक्चुअल में बहुत ब्यूटीफुल होती है. पर्सनली आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट. मैं बिलीव ही नहीं करती उस चीज में. लाइक हाउ कैन दिस थिंग इज ह्यूमनली पॉसिबल? लाइक सी दैट पर्सन, यू आर मैडली इन लव विद दैट पर्सन. नहीं हो सकता. अब उसके अपीयरेंस को लेकर मैडली इन लव, अट्रैक्टेड फील करते हो. ऑब्वियसली फर्स्ट आपका वो तो यही होता है ना, बिकॉज ऑफ हिज और हर अपीयरेंस यू आर थिंकिंग दैट यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन. बट यू स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन एंड यू सी हिज और हर फ्लॉज, एंड अगर स्टिल यू एक्सेप्ट दोज फ्लॉज, देन यू एक्चुअली लव दैट पर्सन. एंड कोई भी ऐसे फ्लॉलेस नहीं होता बिल्कुल भी. एंड अगर मैं अपने फ्रेंड का एग्जांपल लूं, ही वाज टॉकिंग टू समवन एंड ना वो मुझे बता रहा था कि दीक्षा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें. लाइक मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, शी अग्रीज टू इट. मैं कुछ भी कर रहा हूँ, शी इज अग्रीइंग टू इट. आई लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल. वो उसको कुछ पहले बोलती थी, वो बोलता था नहीं मेरा ये पॉइंट, एंड शी वाज लाइक हाँ ठीक है. मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है. मे बी अभी जस्ट बिकॉज टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप एंड मेंटेन दैट टॉकिंग स्टेज शी इज सेइंग दैट. बट थोड़े टाइम बाद व्हेन यू गाइज गेट टुगेदर एंड वो इतनी कंफर्टेबल हो जाएगी, देन शी विल कम टू यू एंड शी विल से अच्छा मुझे इससे प्रॉब्लम है. तब क्या करेगा? मतलब तब इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो, तब क्या करोगे? सो इट्स बेटर टू क्लियर एवरीथिंग एंड जस्ट बी एज ट्रांसपेरेंट एज यू आर एंड नेवर प्रिटेंड to be someone or never pretend to like something which you don't or dislike something which you like. I had this conversation with a couple. वो बहुत बड़े, मतलब 35-40 years के होंगे, and I was talking to that person. तो मैं first time उस बर्थडे पे मिली होंगी उनसे. मैं पूछ रही थी कैसा रहा. लाइक हमारी अरेंज मैरिज है ऐसे कर. मैंने कहा अरेंज मैरिज से वर्क कैसे करती है? He was like I smoke. एंड मैंने उसको क्लियरली बता दिया था, लिसन आई स्मोक एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो, अभी बता दे, बिकॉज दिस इज माई चॉइस एंड आई लाइक स्मोकिंग. फर्स्ट मीटिंग पे हमने ये सारी बातें करी थी एंड शी वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट. जो उसको पसंद था उसने मेरे मुंह पे बोला कि अच्छा आई ऑल्सो लाइक स्मोकिंग या फिर आई ऑल्सो डू इट वेरी ओकेजनली. सो हमने पहले ही उसमें क्लियर कर लिया था कि दिस इज वॉट मैं ड्रिंक करता हूँ, इतने टाइम में करता हूँ. तो कहता क्योंकि बाकी बाद में जाकर हमारी शादी हो जाए एंड शी गेट्स टू नो दैट आई स्मोक एंड तब जाकर कुछ प्रॉब्लम हो, आई कांट अफोर्ड इट. आई वाज लाइक दिस इज वेरी ट्रू. हमने सारे अपने हैबिट्स वगैरह सब कुछ, ड्रिंकिंग वो या फिर अच्छा लाइक गो आउट पार्टिंग एंड कुछ भी सब कुछ टेबल पे रख दिया. कहा कि दिस इज अस. आजकल की जनरेशन ऐसी है कि कह रहे हैं किसी को कोई भी किसी की कमी नहीं है. इफ यू आर नॉट मैचिंग द वाइब देन ठीक है, इट्स ओके. ठीक है, म्यूचुअली डिसाइड कर लो नहीं मैच हो रहा, पूरी लाइफ बितानी है. सो ठीक है, लेट्स टॉक टू समवन एल्स, लेट्स एक्सप्लोर विद समवन एल्स. और बहुत बार ये भी होता है, मुझे ऐसा लगता है जब आप बात करने लगते हो ना, डोंट टेल देम द kind of guy you want or a girl you want, because sometimes the person can pretend to be that person एंड वो उनकी ट्रू पर्सनालिटी नहीं होगी. आई नो वी लिव इन अ ट्विस्टेड वर्ल्ड. आप चाहे कैसे भी हो, सामने वाला बंदा आपको नहीं पता कैसा होता है. एंड मुझे ना पहले पर्सनली ऐसा लगता था कि वाई डू पीपल हैव लाइक ट्रस्ट इशूज और ये सब चीज़ें भी ना अभी मैं देखती हूँ. एंड आई सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स हैविंग मेजर ट्रस्ट इशूज ऑनलाइन एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट ओपनली. ट्रस्ट इशूज की वजह से कॉम्प्लिकेट होना रिलेशनशिप इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. लाइक अपनी इनसिक्योरिटीज पे तो हर किसी को वर्क करना चाहिए. यूर always evolving, but being too easily trusting also is a bad thing. So somewhere in between. and ये मेरी किसी friend ने मुझे टिप दी थी कि never share your past एकदम से with someone. like अभी आपकी बात start हुई और आप 2 दिन में सब कुछ बता रहे हो, that's trauma bonding. and never tell them the kind of person you would want. yes, you can share your likings and dislikings, but कभी कभी the person just to woo you can become that person also ना. so ये भी नहीं करना चाहिए. like my friend, she's been in a like long term situationship. क्या उसका तो relationship हो गया, a long term relationship 10-12 years, and after that they broke up and the guy got married to someone else. now she's left alone क्योंकि उसको लगता है that all her life 10 साल of her life उसने उस relationship को दिए थे और वो कहीं चला गया and this person has moved on and she's still there. so one thing which I've learned from my friends and from her experience also, have multiple
people in your life, multiple people as in make sure that आप एक बंदे पे एक तो वैसे भी just depending on one person कि तू ही मुझे खुश रख, तू ही मुझे वो रख, that's also pressurizing. Like make sure you have your own friends का group, उसका group भी हो चाहे, you guys travel together or maybe go out together, that's also very good bonding session. But have your own hobbies, have your own personality, have your own viewpoints, just don't become someone's shadow. And दूसरे बंदे को भी अच्छा लगता है यार कि oh this person is different, जब मैं इसके साथ आता हूँ मुझे different experiences मिलते हैं and हम दोनों अलग अलग लेवल पे ग्रो करते हैं, वापस when we come together हमारे पास कुछ नया है to discuss and to share things about. लोग बोलेंगे हर podcast में बोलती है, but I like reading, watching a lot of things. So I read this somewhere that उसमें लिखा था why do people fall out of love when they don't experience things अलग अलग or they don't go out of their own comfortable bubble. तो वो सब कुछ इतना monotonous और वो सब हो जाता है. I don't know if I agree with it completely, but थोड़ा % of it made sense कि हम दोनों को ले ले, अगर तू और मैं सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहेंगे, एक पॉइंट के बाद हमारे पास कुछ like we won't have something to talk about. Like I really enjoy when you come back from your trip or maybe like a night out or with your friends and you come back and you say ये हुआ हमने ये करा वो करा. It's nice to have your own experiences and grow separately as an individual also rather than just being codependent and tied together. Now this girl जिसका relationship मैं बता रही हूँ, now she's finding herself, now she's healing herself and it's such a sad thing कि आप एक relationship के बाद आपको ऐसा हो जाता है ना, आप you gave someone your best and उसके बाद आपको ऐसा लगता है मुझे किसी को देना ही नहीं अपना best. And I think she's in that phase right now कि I'm not gonna trust anyone, I'm not gonna do this, I'm not gonna like किसी और की गलती की वजह से आप अपना heart वो हो जाता है ना, and like you might find someone later on in life, क्या पता उसकी intentions pure हो. So in the end पता है it all comes down to the fact that how are you keeping yourself happy alone. Exactly. कभी भी आप void fill करने के लिए, validation लेने के लिए किसी और के पास जाओगे तो वो validation और void उसके हाथ में है. वो खुश है तो वो तुम्हें खुश रखेगा या रखेगी. जिस दिन the other person is sad then आप किसके पास जाओगे खुश होने के लिए. So that's true, but जो तूने अभी बोला that you need to experience things individually also so that you come back together and share things and वो monotonous नहीं लगता. But I feel some people do cheat after a point of time. There are so many cases that अच्छा he cheated on her, she cheated on him, ऐसा होता है. मुझे personally feel होता है कि cheating happens because after a point of time you get bored in a relationship, you get irritated. Monotonous. Yeah, you get irritated with your partner and ये आता है relationship में. अगर हम sibling relationship भी ले लें हमारे उसमें भी आता है, ठीक है. We've shared this so many times on podcast also. But in a relationship आपका जो वो starting period जो होता है ना एक relationship का, you feel very happy, oh I'm exploring honeymoon new phase. thing, honeymoon phase and everything, and after that honeymoon phase dies and then life gets monotonous and when there's no drama also involved in a relationship, you are in a healthy relationship, mainly healthy relationship gets monotonous after a point of time. And ना मुझे लगता है monotonous phase जो आता है ना वो maximum 1 or 2 months का होता है, उससे ऊपर नहीं होता. But वही एक टेस्ट होता है. अगर आप वो 1 और 2 महीने में अगर आप ये सोचो oh I'm bored of this person, no you're not bored of this person, you're bored of the monotonous life which you're living. And वो आप किसी के साथ भी आओगे आपको वो फेज तो आएगा ही आएगा ना. So वो एक टाइम होता है जिसमें आप कुछ रिवाइव करो या फिर ठीक है थोड़ा सा टाइम स्पेस ले लो या कुछ ले लो, then you come back together because like I've been living with you since 26 years now. एक टाइम ऐसा आता है जब हम दोनों में भी वो आ जाता है, बट आई थिंक हमारा एक दिन में वो टाइम निकल जाता है. एक दिन सबको अपनी स्पेस मिल जाती है, वो ठीक हो जाता है. बट some men, women, they go out and explore different people, different relationship, then they feel like oh he or she is listening to me, इसके साथ मेरे को ज्यादा कंफर्ट आ रहा है, ये आ रहा है. बट वो कंफर्ट भी सिर्फ स्टार्टिंग का होता है बिकॉज वो आपकी लाइफ को भी नया नया जान रहा है, वो और इंटरेस्ट दिखा रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपके पास्ट और प्रेजेंट को नहीं जानता जो आपका पार्टनर जानता है. सो इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड मेरे को समझ नहीं आता कैसे, मतलब बहुत टफ होता है उस टाइम पर अपने आप को कंट्रोल करना, बट यू शुड. एंड चीटिंग इज नॉट द solution. Like मैं अभी एक रील ही देख रही थी, उसमें there is this couple, very old couple, 80-85. She was like when we were 50 years old, we went to a couple therapy. हम उस पॉइंट पे थे, उस वॉच पे थे to get a divorce because हमारी इतनी फाइट्स हो रही थी, इतना बिल्कुल व्यू पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा. कहते हम फर्स्ट टाइम थेरेपी में गए एंड फर्स्ट टाइम थेरेपी में भी हमारी लड़ाई हुई कि इवन थेरेपिस्ट वांटेड अस टू गो आउट ऑफ द रूम, इतना बुरा था. कहते फिर देन हमने ये डिसाइड करा we'll go on a date for a month and जो भी हमें एक दूसरे के अंदर अच्छी चीज लगी या डे में कुछ भी अच्छा हो, we'll write it out. हम लिखेंगे. कहता एंड ऑफ द मंथ आते आते हमने इतना गुड टाइम स्पेंड करा था that we revived our relationship again. Now we are 85-90 years old and we are married happily in love. So that's how relationship works, I feel. Personally अगर मैं अपनी relationship का बात करूँ, मुझे लग रहा है after 2 years now I'm experiencing that honeymoon phase, which I'm very happy because
Touchwood. हाँ टचवुड, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है वी स्टार्टेड ऑफ एज फ्रेंड्स, लाइक इट्स बीन 9 years नाउ दैट आई नो हिम एज अ फ्रेंड. ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट हिम, एंड वी हैड नो टॉपिक टू टॉक अबाउट. लाइक मैं तुझसे पहले कितना बात करती थी कि हम बात ही नहीं करते फोन पे, वी जस्ट मीट एंड वी जस्ट टॉक. तो हमारे पास कुछ था ही नहीं जो एक न्यू रिलेशनशिप में कपल बात करते हैं आकर कि अच्छा आर के लिए बात करें, 2 hours they're just talking. So we had nothing to talk about because we knew everything about each other. So then we started like spending more time together, because initially we used to just meet for a day in a week, and then वो ना जितना कम टाइम आप किसी के साथ स्पेंड करो ना आप उतना कम अटैच होते हो उस बंदे से. एंड नाउ आई थिंक वी मेक श्योर दैट वी मीट 2-3. मतलब आप किसी के साथ जितना टाइम स्पेंड करते हो आपको उतनी उसकी चीजें, उसकी छोटे छोटे क्वर्क्स, उसकी अच्छी बुरी चीजें वो सामने दिखती हैं, तो आपको वो प्यार होता है, अच्छा लगता है. एंड आई थिंक ये मैथ्यू हसी ने भी बताया था अपने उस पॉडकास्ट में. आई थिंक जे शेट्टी के साथ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जे शेट्टी वाज टेलिंग हिज एक्सपीरियंस कि जब वो रेगुलरली मिलने लग गए ना तो एक दूसरे की चीजें उन्हें अच्छी लगने लग गई एंड देखने लग गए. एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग आई वुड लाइक टू एडवोकेट ऑल्सो. मीट द अदर पर्सन as many times as you can, because that's when you know the real person. And I follow this page. Wait, her profile is really nice. She talks about a lot of different things and problems in relationships जो आजकल लोग face करते हैं. Wait, the Sabrina Zohar show. Her profile is amazing. Not a therapist, dating coach, podcast for dating, anxiety and doing the work. बहुत सारे ऐसे topics जो आजकल लोग feel करते हैं. She talks about that and वो अपने experiences भी बताती है, which is amazing. As you grow older, life gets really complicated. You just don't know. किसी चीज की कुछ आइडिया नहीं होता. यू कैन ओनली कंट्रोल योर सेल्फ इन द एंड. एक वीडियो थी वो देखी थी मैंने इसमें कि वी बोथ कम टुगेदर and become a better person for each other. Exactly. I'll do my best, you do your best for you, so that we can come together and become better for each other, which is such a beautiful thing. Yeah, on situationships पे वापस आते हुए जितना मुझे mindset समझ आता है लोगों का, जो लोग situationships में रहना चाहते हैं, I think तो first of all commitment issues तो होते ही हैं, but they feel that उस hurt से बचने के लिए, मैंने 1-2 लोगों के मुंह से सुना है कि I don't want to be in a relationship because I love from my heart. कोई और मेरे पे चीट करे, कोई और कुछ करे, तो इससे पहले मैं रिलेशनशिप में ही नहीं आना चाहता या आना चाहती. There's so much to do, life is so big, and जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, you are bogged down, and मतलब बहुत स्यापे होते हैं इन पंजाबी लैंग्वेज, कलेश होते हैं. एंड मैं पता है पहले ना सबको एक्सप्लेन करती थी, एंड आई यूज्ड टू वेस्ट सो मच एनर्जी कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, पता है ऐसा मत कर. नो आई हैव रियलाइज्ड नो, किसी का माइंडसेट अगर कुछ है तो है. लाइक आई हैव बीन थ्रू सो मच, एंड इफ आई एम दिस पर्सन स्टिल, like I'm very proud of you that you have not lost hope. That trust in relationships and love. Yeah, मेरे को सिर्फ ये लगता है कि if as a person me and there's one more friend who has also gone through shit and she also believes in love and she's also like very happy and yes there are good people है वो, तो फिर अगर किसी और का पॉइंट समझने के लिए उसको benefit of doubt देने के लिए मुझे ऐसा लगता है no, ये नहीं होता. आप रिलेशनशिप में अगर रह रहे हो तो बुरा नहीं होगा, अच्छा होता रहेगा, अच्छा बुरा दोनों होता है. You can't change your friends also, मतलब उनका माइंडसेट भी चेंज नहीं कर सकते. जिसकी जो थिंकिंग होती है आई थिंक उसको अपने आप इन फ्यूचर रियलाइज होता है. बिकॉज मैं ऐसे बैठ के ना बिल्कुल एक्सप्लेन करती थी कि जब आप बड़े हो जाओगे लाइफ में देयर इज अप्स एंड डाउन्स, रिलेशनशिप से ऊपर कुछ नहीं होता है. करियर ऑल्सो, आई प्रीच अबाउट करियर, इंडिविजुअलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो लाइक आई थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी पर्सनली. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड आई थ्राइव ऑन दैट. एंड मैं उनको समझाती थी बैठ के ये हाई एक टाइम तक रहेगा, उसके बाद क्या, यू वुड नीड योर पर्सन, यू वुड वांट समवन, बट देन रियलाइज नो. लाइक आई थिंक वो अपनी जर्नी पे हैं, उनको जब रियलाइज होगा तब रियलाइज होगा, बट इट्स I think everyone should take the first step of start believing that there are good people out there also. People have so many traumas, like cheating से insecurities इतनी है कि किसी ने cheat कर रखा है, किसी ने abuse कर रखा है, आपका जो experience रहा वो एक person के साथ रहा, but there are good people also, so start manifesting meeting those people rather than meeting people just like your exes. And so, which is not a sorry मैं तुझे कट करूँ, which is not bad on their part, because अगर आपके साथ 2-3 experiences ऐसे होते हैं ना, जैसे आपको मुश्किल हो जाता है तो नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पैन है वो हॉट है, मैं 3 बार अगर हाथ लगा दिया वो गर्म था और मैं जल गई, तो मेरा ब्रेन ये रजिस्टर कर लेगा ना कि ये गर्म है और मैं जलूंगी. सो आई थिंक दैट हैपेंस इन रिलेशनशिप्स एंड लाइफ ऑल्सो, बट इट्स वेरी टफ इफ यू हैव स्टिल हेल्ड ऑन एंड इफ यू स्टिल बिलीव इन लव एंड इफ यू आर स्टिल एज अ पर्सन लॉयल, फेथफुल एंड बेसिक गुड ह्यूमन बीइंग. आई एम प्राउड ऑफ यू. बट कमिंग बैक, देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड लिमरेंस. लिमरेंस आई थिंक मैंने ये भी बताया था तुझे. नहीं.
वेट गूगल सर्च करेंगे और फिर मैं इसके बारे में बताऊंगी, देन वील एंड द पॉडकास्ट. मैं इसमें बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि द थिंग विच वर्कड फॉर मी इज स्पेसिफिकली टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट बीइंग इन अ रिलेशनशिप एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ. आई लिटरली मैं भूल चुकी थी कोई कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है लाइफ में. सो ट्राई टू डू दैट एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू. So limerence is a state of deep infatuation or romantic desire for someone. Limerence is so weird because you're romanticizing things in your head which is not even there. Oh. Yeah, and अभी मैं I was अच्छा मतलब हाय बोला oh he said hi. Yeah. Not hey. Yeah. Oh, उसने मुझसे ये शेयर करा तो मतलब I'm close to him. ये Yeah. सब चीजें and but जबकि आपको क्या पता वो 3 4 5 पता नहीं कितने लोगों के साथ शेयर कर चुका है. yeah. So there was this guy I know and he used to say things to different girls. अपना ट्रॉमा बताता था जस्ट टू बॉन्ड विद देम एंड जस्ट टू टेक देयर सिंपैथी एंड सोच सिर्फ ट्रॉमा सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए कि वो कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए वो अपने ट्रॉमास बताकर ऐसे कॉन्वर्सेशन बिल्ड करता था. एंड ट्रॉमा बॉन्डिंग जो तूने बोला था कि मैं अपने फ्रेंड से ही बात कर रही थी वो मुझे ये बताता कहता दीक्षा वी बॉन्डेड ऑन आवर ट्रॉमास. कहता व्हाट इफ आफ्टर 6 months हमारे ट्रॉमास खत्म हो जाए फिर हमारा बॉन्ड किस चीज पे होगा. व्हिच इज वेरी ट्रू. इसीलिए पॉडकास्ट में जो मैं आपका बता रही हूँ सबरीना वाला पॉडकास्ट उसमें उसने बोला था नेवर शेयर योर ट्रॉमास एग्जैक्टली ऑन द फर्स्ट डेट और फर्स्ट कॉन्वर्सेशन. बट कमिंग बैक टू लिमरेंस, उस पे सबरीना शो में उसने बोला था कि जब आप लिमरेंस वाली स्टेट में होते हैं व्हेन यू रोमांटिसाइजिंग एंड जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सिटिंग हियर एंड थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन हु इज लिविंग हिज लाइफ नॉट इवन बॉदर्ड बाय मी रैंडमली जस्ट कॉलिंग मी व्हेनेवर दिस पर्सन नीड्स मी एंड उसके बाद हम ओ ही कॉल्ड मी बिकॉज ही लव्स मी एंड ओ वी आर गोना गो ऑन अ डेट ही इज गोना फॉल इन लव विद मी ही इज गोना बी द पर्सन फॉर मी वन डे ही इज गोना फाइंड दैट आई एम अ गुड गर्ल एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला. मैं तो उसकी सारे अप्स एंड डाउन्स में साथ में रही हूँ. ही विल बी आल्सो देयर विद मी. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव व्हाट पीपल आर टेलिंग यू एंड शोइंग यू फर्स्ट हैंड वो बता रहे हैं आपको. कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है पहले वाली चीज से. ट्रस्ट इश्यूज रखो बट अगर कोई बोल रहा है ना आई डोंट वांट अ रिलेशनशिप दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप. आई डोंट बी अ गुरु एंड टेल हिम नो 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 आई एम देयर फॉर यू. आई एम हियर फॉर यू. And I've seen people change when a guy knows that she's my girl. They change for that person and they lead the way towards commitment, towards long-term things. But yeah, coming back on limerence, your cortisol levels, जो stress वाले levels होते हैं, वो spike up हो जाते हैं. वो spike up हो जाते हैं. हाँ, और dopamine नीचे चला जाता है. तो फिर आप रोमांटिसाइज कैसे कर रहे हो? हाँ, तो dopamine जब नीचे गया तो मेरे लिए अब भी dopamine hit कहीं और है नहीं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ में और कुछ भी नहीं है. गुड dopamine क्या होता है? वर्कआउट, मे बी लाइक वर्किंग ऑन योर सेल्फ लेटर ऑन, जिससे dopamine मिलता है ना. क्विक dopamine क्या होता है? लाइक्स आए स्टोरी पे, ये आया, पोस्ट कर दिया, वैलिडेशन, ये सब चीजें क्विक dopamine hits होते हैं. जंक फूड, बिंज वॉचिंग, दीज आर क्विक dopamine hits. तो मेरी लाइफ में अगर गुड dopamine hits नहीं है, मेरे को सिर्फ अभी मैं उससे ही हो गई हूँ. मैं ओवर फैंटेसाइज, ओवर सब कुछ कर रही हूँ वॉइड फिल करने के लिए कि चलो लाइक दिस पर्सन इज देयर. जब वो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है तो मेरा कॉर्टिसोल लेवल ऊपर जा रहा है और मेरा डोपामिन नीचे जा रहा है. मैं डोपामिन हिट लेने के लिए उसका कॉन्टैक्ट चाहूंगी. एंड वो नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये पोर्ट्रे करता है. नर्वस सिस्टम, मैं वो बता रही हूँ जो मैंने पॉडकास्ट में सुना था. नर्वस सिस्टम ये परसीव करता है कि यही मेरा सेफ्टी है. जब तक ये मेरे पास नहीं आएगा मैं सेफ फील नहीं करूंगी. विच गोज बैक टू योर चाइल्डहुड. बच्चा होता है, जब वो मम्मी पापा नहीं दिखते तो रो रहे होते हैं, और जब मम्मी पापा दिख जाते हैं वो काम डाउन हो जाता है, सूद कर देते हैं ना उसको. तो यू हैव टू रिमेंबर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ रैंडम स्ट्रेंजर, यू डोंट इवन नो दिस पर्सन, दैट्स नॉट योर पेरेंट जिससे आपको सपोर्ट मिल के आप खुश हो जाओगे. एंड दैट्स समवन यू डोंट इवन नो प्रॉपर्ली. सेल्फ सूदिंग, read about it or maybe like watch a video on YouTube. Self-soothing is how you manage your emotions. जैसे आप थेरेपी वगैरह में तो करती हो, बट खुद से कैसे मैनेज कर सकते हो अपने इमोशंस. Yeah, limerence is such a like weird thing also. Yeah. जो चीज है भी नहीं. But I love how everything is connected to science now. हम scientifically कितना हर इमोशन को देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं. एंड पहले हमें अगर ये सारी चीजें नहीं पता था कि वो वर्क कैसे कर रहा है, व्हाट इज लिमरेंस. एंड एक्चुअल में अगर मैं सोचूं अच्छे से तो सबने एक्सपीरियंस करा होगा अपनी लाइफ में. एंड हमारे एक्शंस का यही केमिकल लोचा. Yeah, and I think I've learned so many things in therapy. अपनी therapist से I was sharing this thing कि बहुत improve हो गई है पहले से वो चीज. जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है ना, I need to talk about it again and again. I think तूने भी नोटिस करा होगा, पहले से बहुत कम हो गया. When I was going through a shitty phase in my life and I was maybe reading a lot of things. और मैं तुझे पहले ही बोलती थी stop talking about it. Yeah. है ना, maybe that will. But that's cognitive therapy जो मैं therapist के साथ करती हूँ. That's cognitive therapy जब आप बात करके ठीक होते हो या फिर शेयर करते हो ये सब चीजें. That's a slow process, gradual process. बट मैं कुछ पढ़ती तो मुझे ऐसा लगता था आई यूज्ड टू वोकलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड बार बार वैलिडेशन लेके वो करना, जो कि इन द एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. आप अपने फ्रेंड्स और क्लोज वन से ही शेयर करोगे, बट एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो आपके साथ रहते हैं. शायद वो कितनी बार आप उनको बोल दोगे. सो यू नीड टू मे बी चैनलाइज और मे बी मैनेज योर इमोशंस खुद से भी. तो आई थिंक आई हैव लर्नड दैट आल्सो, स्टिल लर्निंग. अच्छा ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी. आर यू इन फेवर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स
or not? I think now I am. Now you are. It's so much better to live with someone and just क्योंकि सबरीना का podcast मैंने heavily promote कर दिया है, but in that podcast she goes कि one dating tip मैं किसी को देना चाहूँगी तो ये dating tip है कि just going out for the drinks and having picnics and movie dates and ये सब चीज़ें इतनी fancier और इतनी आप अच्छे best phase में होते हो अपने when you actually mundane task कर रहे हो, for example grocery shopping या random like appointments वगैरह के लिए basic boring task के लिए साथ आप रह सकते हो, and maybe going out, I don't know how feasible it is for a lot of people, but going out for like 2-3 days with someone and just seeing how they wake up, how they sleep, best. how they react. Obviously, there are so many people who can't do live-in relationship in India. The best way is to just go and travel with your partner and see and observe their habits, how that person is in the morning, what's their night routine, and कितना aggressive, किस position पे उनको सबसे ज़्यादा cranky होते हैं. Like I am the most crankiest person in the morning. So my sister has accepted the fact now, and वो मुझसे बात ही नहीं करती है सुबह. और लिटरली मैं सुबह ऐसी होती हूँ कि मुझसे कोई कुछ मत बात करो. तुमने देखा जिम कार में भी मैं ऐसे बिल्कुल साइलेंट होती हूँ कि मेरे को थोड़ा सा कॉफी हिट या कुछ हिट मिलने दो, दैट बॉडी को शेक कर दो कि मैं उठ चुकी हूँ. तो बहुत लोगों की सबकी अपनी हैबिट्स होती है, तो जस्ट ट्रैवल विद योर पार्टनर एंड सी. Yeah, and with that we're gonna end the podcast, but before that we're gonna share a few pointers, signs that you're in a situationship, so that if you're going through it, you know, and maybe this is your sign to take a step back and analyze the situation. Okay, first, there is no title. Second, when you don't know if you're together officially or not. Third, if you've been going with the flow with no direction for more than 6 months while having sex. Fourth, all you do is text. Fifth, you consider yourself as more than a friend but not officially a couple. Sixth, the sex is amazing but so is the level of confusion. Seventh, fear of rejection. If you never opened your mouth about wanting more, it usually never becomes more. That's also nice. Eighth, someone is too busy to be serious but always have time to chill and fuck. Oh god, ये कैसे बिल्कुल to the point is मारे में. Next, there's no commitment. You've come to the conclusion that she isn't really the one, but hey, you'll hang with them now until someone better comes along. No obligations, no responsibilities, no accountability. Someone can only see you in their future. You broke up with your ex and now in the working on being friends again so that we can build back to a relationship phase. That's nice. There it is, guys. If you're experiencing any of these signs, then this is your sign to stop experiencing those signs. Say bye. Yeah. To say bye. Bye, boy. Yeah. Bye, girl. And on that note, we are going to end this episode. And I hope you like this. ये बहुत fun हो गया हमारा, है ना? Yeah. बहुत अच्छा. We can talk about ऐसे dating के different चीजें and dating in 20s and 30s maybe later on. We'll do that. But that's it for today. I hope you enjoyed the podcast. Let us know your current relationship status in the comment section below. Are you single, situationship, just friends, friends with benefits, or in a relationship? Bye, guys. Bye, guys. What's up, sister?